introduce Dr. Nutan in just a half minute's time. Dr. Nutan, she's an author of pre and postnatal yoga and Garbha Sanskar, and she's a founder of AYG Academy, which we know is doing a lot of work these days. And over 20 years of experience, Dr. Nutan has experience as a Ayurvedic doctor and a teacher. She has coached more than 1,000 students till now, maybe even more than that. And she's a recipient of various awards for her contribution towards the society. So AYG Academy again has a lot of courses, like ongoing online and offline courses, which we can take advantage of. And for more information, please visit their website, www.drnutan.com. Thank you. And just I'm handing over to Dr. Nutan. Okay. So hello, everyone. Good evening. Namaste, sir. This is my pleasure to invite you on AYG Academy platform, and this is our first session, and I hope you will be visiting frequently in future as and when you get time. So let me introduce to the people, because this recording will be shared with my student, all of them, whoever later on listen to you. So I would like to introduce you little bit briefly. What I can say about Dr. Bhalekar, he is one of the simplest person, but he has a lot of wisdom with him. And his background, I met him in Kevaladham when I was working in Kevaladham Mumbai branch, but I used to visit Lonavala. So that time I got an opportunity to meet sir, and any conversation with sir always resulted into the something new, I got to learn from him. And apart from this, formally Dr. Sharat Chandra Bhalekar is an Ayurvedacharya and has done his master in counseling and psychotherapy. He has been working as assistant professor at Kevaladham. He was also worked as principal in charge in Kevaladham. Important thing about sir is he is author of book that is Pranayam, Mudra and Meditation, and that's why I thought who will be best person to talk on this particular topic, that is pranayam in pregnancy. I hope I'm audible. I don't know why I can't see all of you. Am I there? Yes, ma'am, you're audible. Okay, so let me show you his book. This is the book Pranayam, Mudra and Meditation. There is another book that is Anatomy and Physiology of Yoga, and one more book that is Vipassana. I think it will be published soon, or it might have published. So there are a lot of things which I can talk about Dr. Bhalekar, but today I don't want to take much time, and I would like to hand over to Dr. Bhalekar and welcome on this AYG Academy platform. Sir, please share your knowledge, wisdom and insight on this topic, that is pranayam in pregnancy. Over to you. Sir, unmute. Sir, unmute. Okay. So thank you, AYG Academy. I'm saying in last 2 years, AYG Academy has been following very nice projects, programs, and day by day, these are becoming more and more educative. And you see, one doctor, when decide to work in the field of yoga, the orientation is more and more, superior, being a yoga therapist or yoga consultant. Okay, and that's why you see, when the doctor introduce some yoga practices, he is already with some scientific knowledge, and he can explain that mechanism, and he can utilize those practices as he know the body. Because in pregnancy, we should know the condition. Yesterday, someone asked me that, should I do Kapalbhati in pregnancy? I said, let us see how you can follow.
because in after 5 months, if you follow Kapalbhati, it is difficult because you are contracting the abdominal muscles and you are putting unnecessary pressure on the intra-abdominal organs, especially the uterus, where the fetus is growing. So, not necessary to choose very difficult practices in pregnancy. About asana also, about pranayama also. With some simple modifications, with some simple variations, we can work throughout the pregnancy. And today we will see how those practices works, how they are significant, how they benefit at body level also, at mind level also. And as we are working in pregnancy, how these are helpful for mother also and for the child also. You see, about pranayama, Patanjali, made some sutras about pranayama. He says, Tataha kshiyate prakashavaranam. And the meaning is that with the practice of pranayama, you can reduce the rajasic and tamasic properties of the mind, and you can enhance the sattvic properties of the mind. According to modern psychology, if you consider this sutra, I will simply say that pranayama help to change your previous personality and to build up in a more mature, more calm and cool personality. Okay, so even in childhood, the problem is ADHD, where the child is hyperactive and attention losing. So in such children also, the practice of pranayama is a remedy. In adolescent, as they find or as we know how they are very aggressive, because of some small reason, how they show their aggression, how they show their antisociality. कल बहुत बुरा लगा कि एक 14 साल की लड़की ने किसी 5 साल की लड़की का गला काट दिया. ये नागपुर में ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में. एंड रीजन वाज वेरी सिंपल अबाउट मोबाइल. कितने एडोलसेंट स्टूडेंट होते हैं, मोबाइल नहीं दिया तो सुसाइड कमिट किया या किसी की हत्या कर दी. दैट मीन्स वी नीड सम टूल टू कंट्रोल the behavior, to control the personality, and here is the role of pranayama. The regular practice of pranayama built up calm and cool personality. Why I'm saying that if a pregnant lady adopt the practice of pranayama, definitely that helps to calm down her mind, to control her stress, but at the same time that also helps to build up a good personality in the fetus also in future. If she remain irritable, if she remain stressed with fight and flight reaction, that reflects on the baby. You see, some stress hormones directly passes through umbilical cord and that reach to the fetal body. So when she follows some stress reaction, then the fetus also follows stress reaction unnecessarily. So fear is in the mind of mother, but who follows that fear mechanism the unnecessarily? That fetus. So whatever the tension, some suppression of the feelings, create some anxiety, depression. And that's why what is the main importance of pranayama? To build up a good personality. It is a foundation of personality, and this is the first step of foundation of personality that is in our hand. Okay, what type of personality she shows in pregnancy, that reflects on the baby. तो अगर किसी द्वेष के सहारे अगर या किसी डर के सहारे अगर वो रहती है, तो वो रिफ्लेक्ट होने वाला है. Many babies adopt OCD or some panic phobic conditions. It is because of the bad activity or bad lifestyle that is adopted in pregnancy. मैं कितनी बार कहता हूँ कि प्रेगनेंसी के वक्त ये गंदे सीरियल्स मत देखो, सांस बहू के झगड़े वाले सीरियल्स मत देखो, जिसमें केवल ऐसा एक इमोशनल एग्जैगरेशन होता है, और वो देखते देखते इनके ब्रेन में भी डोपामाइन के सिक्रेशन जोरदार होने लगते हैं, which disturb their mind, which creates unnecessarily
फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस, तो वो टालने चाहिए। तो प्राणायाम का अगर सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन वो है, या बेस्ट सिग्निफिकेंस वो है कि इट बिल्ट अप ए गुड पर्सनालिटी ऑफ फीटस। दिस अ फाउंडेशन। जिस जिस वुमन ने पूरे प्रेगनेंसी में अच्छे से प्राणायाम किया, मेडिटेशन किया, उनकी जो संतति है वो हमेशा काम एंड कूल एंड मोर मैच्योर देन देयर यूजुअल एज ग्रुप ये दिखाई देती है। हमारे यहाँ केवलधाम के पास मनशक्ति विकास केंद्र है, जिसमें वो कपल को बुलाते हैं। सो 5th and 6th मंथ में या 4th या 5th मंथ में दो एक साथ कपल को बुलाते हैं, और उनमें एक गर्भ संस्कार हम शब्द यूज करते हैं कि गर्भ संस्कार, इसके मायने अलग अलग है। उनको एक रिलैक्सेशन के टेक्निक सिखाते हैं, एंड देन दे train them how to talk with the baby, how to provide positive suggestions to the baby. Definitely बेबी को पॉजिटिव सजेशंस उसके माँ बाप ही दे सकते हैं, स्पेशली उसकी मदर दे सकती है, लेकिन दैट सजेशंस बिकम स्ट्रांग ओनली व्हेन शी इज काम एंड कूल। इसलिए अगर ऐसे गर्भ संस्कार के प्रयोग करने भी है, तो भी मैं कहूंगा कि ये जो गर्भ संस्कार का एक शेड्यूल होगा, आधे घंटे का, 1 घंटे का, उसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा वो प्राणायाम का होगा। सो फर्स्ट काम डाउन। मैं कहूंगा पहले 20 मिनट प्राणायाम दे दो, लेट अस काम डाउन हर माइंड। देन एक 10 मिनट के लिए शवासन दे दो, उसमें ब्रेथ बॉडी अवेयरनेस दे दो, एंड देन स्टार्ट द गर्भ संस्कार नेक्स्ट हाफ आवर। सो दिस विल बी अ गुड शेड्यूल फॉर द लेडीज। अब प्राणायाम जो है वो पूरे प्रेगनेंसी में हम करवा सकते हैं। लोग पूछते हैं मुझे कि कब से प्राणायाम शुरू करना है। मैं कहता हूँ एज यू डायग्नोज द प्रेगनेंसी, यूजुअली इन 2nd मंथ आपने अगर प्रेगनेंसी डायग्नोज की है, तो उसी दिन से आप क्या कर सकते हो, तो उसी दिन से आप प्राणायाम जरूर कर सकते हो। आसन की बात अलग है, क्योंकि 2nd मंथ में थोड़ा सर्विक्स जो है वो पूरा क्लोज नहीं हुआ है, वो क्लोज होने के लिए और 1-2 हफ्ते लगते हैं। सो एट द एंड ऑफ 2nd मंथ इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड, देन द प्रैक्टिस ऑफ आसना बिकम मोर इजियर, मोर सुटेबल। तो इसीलिए जैसे ही प्रेगनेंसी अनाउंस हो जाती है, हम पहले कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट ले लो, अवॉइड सम वाइब्रेशंस, सम जर्क्स। तो जर्नी अवॉइड कर लो, या कुछ एक्सेसिव फिजिकल जो एक्टिविटी है उसको हम अवॉइड करेंगे। लेकिन कर क्या सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं। okay? तो दूसरे मंथ से लेकर आखिर के दिन तक प्रेगनेंसी के वो प्राणायाम कर सकती है। अब हम देखेंगे कि कौन सा प्राणायाम कर सकती है, कैसे कर सकती है। प्रेगनेंसी में आसनों का जितना महत्व है, उससे ज्यादा प्राणायाम का ही महत्व है। आसनों का महत्व मैं मानता हूं, बिकॉज यू सी इन प्रेगनेंसी शी नीड टू कीप द बॉडी एक्टिव। कभी कभी ओवर प्रोटेक्शन होता है, तुम आराम कर लो, तुम काम मत करो, बाकी काम देख लेंगे। तो जब प्रेग्नेंट लेडी है तो कभी कभी ये ओवर प्रोटेक्शन भी खतरनाक होता है। व्हाई? बिकॉज throughout the pregnancy, if she can't follow some physical activities, तो ऐन वक्त पर जब लेबर की बात आती है, तब ये पेल्विक मसल जो होते हैं वो सडनली फटीग में जाते हैं। ओके, स्पेशली अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, कि पहली प्रेगनेंसी और पहली डिलीवरी है, तो वो डिलीवरी थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है, बिकॉज बॉडी इज लर्निंग the process of labor, the body is learning, so it takes more than 12 hours, sometimes it takes 18 hours to 24 hours। तो लेबर पेन जहां से स्टार्ट होता है तब से 24 घंटे तक का सिलसिला है। इसमें थोड़ा पेल्विक मसल्स, हिप रिलेटेड मसल्स एक्टिव रहना जरूरी है, वो जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होने चाहिए। बट क्योंकि अब यूटेरस सीख रहा है कि हाउ टू एक्सपेल द बेबी, तो ये पेल्विक मसल के कॉन्ट्रैक्शंस अलोंग विद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ये बार बार होने वाले हैं, धीरे धीरे इंटेंसिफाई होने वाले हैं। बहुत बार क्या होता है, इफ शी रिमेन लेजी, स्पेशली इफ हर हिप रिमेन इनएक्टिव, तो आइन लेबर के वक्त उसके मसल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यूटेरस आल्सो लूजेस और सीजेस द कॉन्ट्रैक्शन। और
इससे इसके बात ऐसे होती है कि अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर तुरंत डिसीजन लेते हैं कि नहीं नहीं, अब ये बच्चा अंदर सफोकेट हो रहा है, लेट अस फॉलो सीजर। तो ये नॉर्मल डिलीवरी का जो एक बेनिफिट है वो भी निकल जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी don't follow some vigorous physical activity, but she should follow regular physical activity. मैं कहता हूँ रोज का जो झाड़ू पोछा है, हम कहते हैं ना पहले वाला जो झाड़ू पोछा होता है, या अगर हम रूरल एरिया में जाएंगे तो ऐसे गोबर लेकर वो जो सारवन बोलते हैं हम उसको मराठी में, है ना, सो लेपन, हिंदी में लेपन बोलते हैं। सो दैट इज अ गुड एक्टिविटी, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से वो बैठी है, या पहले बैठकर जो कपड़े धोते थे वो भी एक, हम उसको उत्कट आसन या का थोड़ा सा मॉडिफाइड कागासन बोलते हैं। तो इसमें सारे पेल्विक मसल्स एक्टिवेट रहते हैं, हिप मसल्स एक्टिवेट रहते हैं। सो दीज आर द गुड एक्टिविटीज। खेतों में जैसे हम तन निकालने के काम करते हैं बैठे बैठे, वैसे ये उत्कट आसन जो है सिटिंग वाला, वो बहुत काम करने वाली चीज है। तो ये आसन होने चाहिए। अर्ध हलासन पूरा ना हो सही, लेकिन एक पैर से अगर वो हल्के से 60-70 डिग्री तक उठाए तो वो भी उपयुक्त है। सुप्त भद्रासन है या पवन मुक्तासन के कुछ मॉडिफिकेशंस है, दैट ऑल स्ट्रेंथन द पेल्विक मसल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे कीप द एक्टिविटी ऑफ पेल्विक मसल्स। आयुर्वेद ने इसलिए ये कहा है कि प्रेग्नेंट लेडी को स्पेशली इन लास्ट 2 मंथ कौन सा एक्सरसाइज सबसे अच्छा है, वो बोलते हैं चक्रमन। चक्रमन का मतलब घूमना, सीधे रास्ते से घूमना। ठीक है, रनिंग मत करो, जॉगिंग मत करो, लेकिन कम से कम सीधे रास्ते से हम घूम सकते हैं और उससे हम पेल्विक के मसल को एक्टिव रख सकते हैं ताकि लेबर के वक्त वो हमें मदद करे। दोनों की एक according to trimester we can modify those asana and make it more suitable। के बारे में बहुत कुछ डिटेल बात करेंगे प्राणायाम की, कि हाउ टू इंट्रोड्यूस प्राणायाम एंड हाउ इट इज सुटेबल इन प्रेगनेंसी, हाउ टू मेक इट मोर सुटेबल। सबसे पहले मैं कहूंगा कि पूरे प्रेगनेंसी में कौन कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं। अगर ब्रीदिंग प्रैक्टिस की बात बोलेंगे तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इवन स्लो डीप ब्रीदिंग, उज्जाई, शीतली शीतकारी, ये प्राणायाम हम कर सकते हैं। ओनली थिंग इज दैट कि इन प्राणायाम का जो अभ्यास है उसमें पूरक रेचक प्रधान होना चाहिए, यानी ऑल दिस प्राणायाम शुड फॉलो विद द पैटर्न ऑफ पूरक एंड रेचक। हम प्राणायाम के प्रोग्रेसिव पैटर्न बोलते हैं कि पूरक रेचक, ये पहला पैटर्न है। दूसरा है पूरक कुंभक रेचक, तीसरा है पूरक रेचक और बाद में बाह्य कुंभक, और चौथा पैटर्न तो अपने आप आता है, वो है केवल कुंभक। तो सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में क्या हम कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं? वैसे उतना जरूरी नहीं है, प्रेगनेंसी में सिग्निफिकेंट ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। मैं अभी एनाटॉमी बताने वाला हूँ लंग की, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑक्सीजन की जो नीड है वो माँ को भी है, बेटे को भी है। ठीक है, सो दैट मीन्स ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ fetus also and for the female also। तो यह ऑक्सीजन की जो नीड है वो डबल हो गई इस प्रकार से देखेंगे तो इसीलिए सिग्निफिकेंट ब्रीदिंग करना जरूरी है। सो शी शुड फॉलो सम मॉडिफाइड पूरका रेचका स्टाइल्स which significantly expand the lung। कुंभक के बारे में ऐसा है कि इन कुंभक का we put pressure on the abdomen, और जो हमें प्रेगनेंसी में नहीं करना है, इसलिए ऐसे लंबे कुंभक, बहुत बड़े कुंभक हम नहीं कर सकते। अगर करना ही है तो एक 4 से 6 सेकंड का कुंभक कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन मेरा सुझाव ऐसा है कि इससे बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा समय तक प्राणायाम का अभ्यास करें। ठीक है, प्रेगनेंसी में एग्जॉशन जल्दी होता है तो हम ऐसा कहेंगे कि 20-30 राउंड प्राणायाम के पूरे कर लो, लेकिन ऐसा दिन में बार बार कर लो।
जैसे हठ प्रदीपिका कहती है कि प्राणायाम की एक बैठक में आपको 80 प्राणायाम के राउंड पूरे करने हैं। अब प्रेग्नेंट लेडी को हम थोड़ा डिवाइड करेंगे कि 30-40, 20-30 पहले शुरू कर लो और बार-बार कर लो। ठीक है, दिन में 4 बार होगा, 5 बार होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी कभी पेट हल्का लगे, आप प्राणायाम का अभ्यास करो। तो देखो, पूरे दिन भर में आपके पेट खाली कब-कब होते हैं, उसका पता लगाओ और उस वक़्त आप सिंपल ब्रीथिंग प्रैक्टिस शुरू कर लो। तो सवेरे का वक़्त होता है, जहाँ पेट खाली होता है। दोपहर को लंच के पहले पेट खाली होता है। फिर शाम को 4-5 बजे भी पेट बहुत हद तक खाली होता है। तो ऐसे में हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, जो सूटेबल है। सबसे ज़्यादा महत्व मैं उज्जाई प्राणायाम को देता हूँ, क्योंकि पूरे प्रेगनेंसी में हमारे फेफड़ों की क्षमता विकसित करने के लिए या हाउ टू वर्क आउट एफिशिएंटली विथ लंग्स, ये उज्जाई सिखाता है। अब ये मालूम है कि प्रेगनेंसी में जैसे-जैसे यूटेरस बढ़ता जाता है, later on that pelvic structure become abdominal structure, so it occupies some space in the abdominal cavity. Especially after 6 months, it becomes a big abdominal organ. तो उसके कारण बाकी के अवयव भी आजू-बाजू में थोड़े से भटकते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं। तो उसके कारण होता क्या है कि यूटेरस का बहुत सा पार्ट एब्डोमिनल के कैविटी में आने के कारण अब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने वाला है। ज्यादातर छठे 7वें महीने में इन 6 and 7 month यू फाइंड दैट एक थोड़ा सा काम कर दिया तो थोड़ा ऐसा एक सांस फूलती है, हाइपरकैप्निया हो जाता है। क्या होता है एग्जैक्टली? अब मैकेनिज्म इज दैट द मोस्ट active part of the lung in our usual breathing is the lower part of the lung, lower lobes. हमारे फेफड़ों के ऊपर का मजला और नीचे का, ऐसे 3 पार्ट हम करेंगे तो नीचे का जो पार्ट है वो ज्यादा एक्टिव रहता है आर्म ब्रीदिंग में। उस तुलना में मजला और ऊपर का पार्ट जो है वो बहुत कम समय में हम यूज कर सकते हैं। जब कभी दौड़ लगाते हैं, माउंटेनिंग करते हैं या कोई ऐसे विगरस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब। आम रेस्टिंग कंडीशन में हम लंग का 95% लंग का नीचे का पार्ट यूज करते हैं। अब वो कैसे यूज होता है? द डायफ्राम, एक अम्ब्रेला शेप्ड जो डायफ्राम है वो ऐसे नीचे जाएगा। सो व्हेन यू इनहेल द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड। रिमेंबर, व्हेन यू इनहेल डीपली योर डायफ्राम गोज डाउनवर्ड अप टू 2 इंच। तो एट दैट टाइम इट push the abdominal organs downward. तो ड्यूरिंग इनहेलेशन लीवर हो, स्प्लीन हो, स्टमक हो, उनको थोड़ा सा नीचे ढकेला जाता है। आफ्टर ऑल abdomen is expanded, the abdominal muscles are stretched and the organ finds the way. ठीक है, वो नीचे ऐसे किसी पेल्विस में ड्रॉप नहीं होंगे। as the abdominal muscles are stretched, they find the space. लेकिन डायफ्राम के लिए एक जगह क्रिएट होती है। So during usual inhalation, especially in deep inhalation, diaphragm goes downward. अब डायफ्राम की ये मूवमेंट जो है वो इजी होने के लिए पेट खाली तो होना चाहिए, इसलिए प्राणायाम हम हमेशा खाली पेट पर करते हैं। If there is something in the stomach, in the small intestine, in the large intestine, then it becomes difficult to follow the practice of pranayama, especially the inhalation. यूटेरस ही ऊपर आ गया है, स्पेशली इन 6 month and 7th month the uterus, the fundus part of the uterus is facing the diaphragm and it is not allowing diaphragm to come downward as it is a hard structure, क्योंकि अंदर फीटस है और उसके कारण डायफ्राम की जो फ्री मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है। अब बात देखो कि इन 6 month, 7th month, 8th month the need of oxygen is much more. ऑक्सीजन तो बेटे को भी चाहिए, माँ को भी चाहिए, but at that time the main part of the lung become idle, little idle. तो जिस बैट्समैन की बहुत जरूरत होती है वही अगर जल्दी आउट हो जाए तो फिर बाकी के बैट्समैन से वर्कआउट करना चाहिए।
वही होता है कि नाउ इन लास्ट 4-5 मंथ शी नीड टू वर्क मोर विद द मिडल एंड अपर पार्ट ऑफ द लंग। और यहाँ मैं कहूंगा कि द उज्जई इज द बेस्ट ब्रीदिंग। प्राणायाम बोलेंगे ही नहीं, बिकॉज व्हेन वी यूज द टर्म प्राणायाम फिर वो कुंभक भी आ जाएगा। मैं कहता हूँ उज्जई टाइप ऑफ पूरका एंड रेचका इज ओके। और वो कब से कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी को जो हम एक काउंसलिंग करते हैं, जब भी प्रेगनेंसी डायग्नोस होने के बाद उसको जो डेली रूटीन मैनेजमेंट के लिए आहार के बारे में, विहार के बारे में, निद्रा के बारे में बताते हैं, उसी वक्त ब्रीदिंग के बारे में बताओ कि हाउ टू कीप द हेल्दी ब्रीदिंग। उज्जई इज द हेल्दी ब्रीदिंग फॉर प्रेग्नेंट लेडी। हम हठप्रतिपिका में देखते हैं, गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जामाख्यम, यानी उठते बैठते करते रहो। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कभी मौका मिले, चाहे आप खड़े खड़े किचन में काम कर रहे हो, चाहे आप कोच पर बैठकर टीवी देख रहे हो या आराम कर रहे हो, चाहे आप कुर्सी पर बैठकर थोड़ा गार्डन में आराम कर रहे हो, बेंच पर बैठकर आराम कर रहे हो, तब भी मौका है। और तब आप थोड़े जब भी याद आए, उज्जाई के कुछ राउंड्स पूरे कर लो विच एक्टिवेट द लंग इन इट्स ऑल डायमीटर्स और इन इट्स ऑल डायरेक्शंस। इसीलिए अगर वो किचन में काम कर रही है खड़े खड़े, तो जैसे याद आए उज्जई के 4-5 ब्रेथ ले लो। कितना समय लगेगा? बैठे बैठे ले लो, जब भी समय मिलेगा उज्जई कर लो। क्योंकि उज्जई में हम क्या करते हैं, यूस वायुम मुखम आकृष्य, दैट मीन्स एक स्ट्रॉ जैसा ब्रीदिंग है कि गले को एक स्ट्रॉ जैसा समझो। कंसिडर एंड हाउ यू सक द जूस थ्रू स्ट्रॉ, सो दैट सकिंग एक्शन शुड बी डन। ओके, ऐसा समझो कि गले से हम हवा को जूस जैसे अंदर खींच रहे हैं ऐसे। So at that time your neck muscles are contracted. Even you will find the pectoral muscles, upper chest muscles and upper back muscles are also contracted. And because of that, the upper part of the thoracic cage is expanded to the upward and outward side. So this brings the significant expansion in the upper part of the thoracic cage, even the back part of the thoracic cage. ये उज्जाई की खूबी है. And because of that, it becomes easy to expand the lung in that area. ठीक है. So उज्जाई में लंग का जो पार्ट डॉर्मनेंट है उसी को हम एक्टिवेट करते हैं. नो डाउट उज्जाई में लंग का लोअर पार्ट भी काम करेगा, लेकिन मजला और ऊपर का जो पार्ट है, मिडल एंड अपर पार्ट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स आल्सो, दैट आर वेल एक्टिवेटेड. इसलिए उज्जाई को हम कंप्लीट ब्रीथिंग क्यों मानते हैं? क्योंकि वो लंग के सारे सेगमेंट्स को एक्टिवेट कर देता है. और प्रेगनेंसी में तो हमें आगे जाके ये देखना है कि अब लोअर पार्ट ऑफ द लंग इज नॉट एक्टिवेटेड मच मोर बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूटेरस. तो फिर मिडल और अपर पार्ट अगर एक्टिवेट है तो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो अच्छे से होगा, और उसको जो एक प्रकार का ब्रीथलेसनेस होता है, हाइपर कैप्निया, वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं. आफ्टर ऑल द हेल्दी ब्रीथिंग इज यूजफुल फॉर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन टू द फीटस एंड अल्टीमेटली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस. तो इसीलिए इस प्रकार का जो ब्रीदिंग है, जैसे हम कहते हैं कि गले से सांस अंदर खींच लो, अब ये जूस के जैसे खींचना है तो कुछ आवाज होगा, और वो टिपिकल उज्जाई का आवाज है जिसको हम बोलते हैं कि विक्टोरियस साउंड. चलो अब हम कहेंगे कि एक समंदर की लहरों की जो आवाज है उससे साधर में होता है ऐसे. या आप देखेंगे कि कोबरा जो होता है उसको अगर हमने थोड़ा सा छेड़ा तो वो एक प्रकार की सांस लेने लगता है और पूरा शरीर उसका वो फुला देता है. अब कभी देखो कि ये जो स्नेक है कोबरा, तो वो अपने शरीर को ऐसे फुला देता है, तो उस वक्त जो से साउंड आती है उससे साधर में रहता है उज्जाई.
सो सी वेव लाइक साउंड और कोबरा लाइक साउंड। अब यहाँ ऊंचाई जो है वो करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि गले से सांस खींचना तो बहुत आसान की बात है, क्योंकि वी आर यूजिंग सम एक्सेसरी मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन। तो यूजुअल डायफ्राम पर कोई तान ही नहीं है। तो डायफ्राम अगर रिस्ट्रिक्टेड है उसके मूवमेंट्स, तो बाकी के मसल से हम ये वर्कआउट कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सपांड द चेस्ट सिग्निफिकेंटली। तो पहले से दूसरे महीने से ही उसको सिखाओ कि जब भी कभी मौका मिले ऊंचाई कर लो। तो कभी 2 मिनट मिलेंगे, कभी 5 मिनट मिलेंगे, कभी 10 मिनट मिलेंगे। तो जब भी याद आए एक 2-4 ऊंचाई के सांस ले ही लो। कितनी देर लगती है? एक 5 ऊंचाई के सांस लेने में 1 मिनट लगेगा, लेकिन वो 1 मिनट का एक्सरसाइज फेफड़ों को एक्टिवेट करेगा। Because of that, you see, all segments remain active, and that reflects in usual breathing. तो पर्पसफुली ऊंचाई करेंगे तो उसका फायदा ये होता है, बीच बीच में अगर पर्पसफुली ऊंचाई करेंगे तो फायदा ये होता है कि रेस्ट ऑफ द डे बाकी का जो यूजुअल ब्रीदिंग है वो से ज्यादा थोरेसिस होने लगता है। तो थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा मॉडिफाई होना जरूरी है प्रेगनेंसी में, और वो अपने आप होने दो। इसलिए बीच बीच में ऊंचाई से अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करते रहो। ठीक है, ऊंचाई में सांस जो छोड़ना है वो भी किसी एक नासिका से हम छोड़ते हैं या दोनों नासिका से छोड़ो, लेकिन ये जो हवा अंदर लेने की जो पद्धति है उस पर ध्यान दे दो और उससे ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपांशन करने का प्रयास करो। ये फायदा है। हम कहते हैं कि ऊंचाई करने के लिए चेस्ट जितना खुला रहे, स्पेशली द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट जितना खुला रहे उतना अच्छा है। इसीलिए अगर उत्तान मंडूकासन में अगर ऊंचाई करे तो वो और सिग्निफिकेंट है। थोड़ा चेस्ट खुलना चाहिए। तो ऐसे अगर बैठते बैठते हमने ऐसे कमर पर हाथ रख दिए तो भी चेस्ट खुला रहता है, या हल्का सा पर्वतासन किया, या केवल ऐसे हाथ ऊपर करके हल्के से पीछे जाके ऊंचाई का अभ्यास किया तो भी चेस्ट एक्सपांड होने में ज्यादा मदद मिलती है। वैसे आसनों के अभ्यास में जब अंतिम स्थिति में ब्रीदिंग डिफिकल्ट होता है, कभी कभी चेस्ट पर एब्डोमेन पर प्रेशर आता है आसन में, तो उस वक्त भी उन लोगों को हम कहते हैं कि फॉलो द ऊंचाई ब्रीदिंग एज पॉसिबल। तो वैसे प्रेगनेंसी में हम कहेंगे कि चलो ऊंचाई का एक जगह बैठकर 20 मिनट अभ्यास ना सही, लेकिन एक आदत डालो कि बीच बीच में जब भी कभी याद आए एक 5 सांस ले लो ऊंचाई के, बस टू एक्टिवेट द लंग। और ये बार बार याद आएगा तो फिर बार बार बैठकर अभ्यास करने की भावना भी हो जाएगी। तो ये प्रेगनेंसी में हम सबसे पहले सिखाने की बात है कि फॉलो द प्रॉपर ब्रीथिंग थ्रू ऊंचाई। देन अब इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम है वो सूदिंग प्राणायाम हम उसको कहते हैं, कि जो भ्रामरी है। अब भ्रामरी कैसा है कि भ्रामरी में हम सांस गहराई से अंदर लेते हैं जैसे जितना ले सकते हैं, और छोड़ते वक्त हमिंग भी लाइक साउंड या हनी भी लाइक साउंड निकालते हैं। इससे क्या होता है? अब यहाँ फिजिकल एंड मेंटल दोनों बेनिफिट है। सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट ये है कि ड्यूरिंग भ्रामरी फिर एक बार लैरेंजियल मसल थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। एक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम एक प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, इसीलिए जो हवा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर जाएगी उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। जैसे पानी की पाइप है, अगर आगे किसी जगह दब गई तो पीछे जहां वो जुड़ी हुई है वहां से पानी निकल जाता है, क्योंकि वो रिवर्स प्रेशर क्रिएट होता है। वही बात है कि जब हम ऊंचाई या भ्रामरी करते हैं, स्पेशली भ्रामरी करते हैं, तब ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक रिवर्स प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण ब्रोंकस खुल जाते हैं। ये बात ओम चैंटिंग में भी होने वाली है, जैसे ओ, तो जो हवा आसानी से मुंह से बाहर जा रही है, उस अब मुंह धीरे धीरे हम बंद कर रहे हैं ना, ओम करते करते ये मुंह क्लोज होने वाला है। ओम।
तो जो बाहर जाने वाली हवा है उसको हम कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और बिकॉज ऑफ विच ये जो बैक प्रेशर है वो ब्रोंकस के छोटे 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 ब्रांचेस है जो फेफड़ों के अंदर है उनको खोल देता है. So that means if you follow Om chanting or Brahmari for 5 to 10 minutes, at the end, you will find the expansion of all small bronchioles also. Okay. And because of that, further breathing up to 2 to 3 hours is more easy and more significant. तो भ्रामरी आपने 10 मिनट कर दिया, लेकिन बाद में जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न है, लंग का एक्सपांशन है, वो और सिग्निफिकेंट होने वाला है. तो दिन में 3 बार ऐसे भ्रामरी के प्रयोग करेंगे तो फेफड़ों का जो विकासन है, यानी फेफड़ों के अंदर का जो ब्रोंकस का विकसन है वो अच्छे से हो जाएगा. द ब्रोंकस गेट डायलेटेड सिग्निफिकेंटली. तो ये फायदा है, ये फिजिकल बेनिफिट है. भ्रामरी इज सूदिंग फॉर मसल्स आल्सो. सो मसल टेंशन जो होता है, मसल स्टिफनेस जो होता है वो भी निकल जाता है. भ्रामरी के कारण छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है उनके भी स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाते हैं. सो भ्रामरी improves the blood supply by dilating the blood vessels. तो भ्रामरी के कारण लीवर हो, स्प्लीन हो, ब्रेन हो, वहां ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से चलता है. तो ये भ्रामरी का जो अभ्यास है वो आगे जाके ब्रेन पर भी इफेक्ट डालेगा, विच क्रिएट्स सूदिंग इफेक्ट इन द ब्रेन. तो ब्रेन में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन का अंश भी बढ़ेगा. सो शी विल गेट गुड स्लीप. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एक्साइटेशन से जो एक्साइटिंग केमिकल्स जो है डोपामाइन जैसे या नॉरएड्रेनालिन जैसे, उनका जो इफेक्ट है वो डाउन हो जाएगा, बिकॉज दिस केमिकल्स ऑलवेज स्टिमुलेट द स्ट्रेस रिएक्शंस. तो वो डाउन हो जाएगा, तो एक कामनेस क्रिएट हो जाएगा. हम कहते हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी जितनी शांत हो उतना फिटस का ग्रोथ अच्छा है. तो किसी भी बहाने रोज के थोड़े से तनाव में अगर स्ट्रेस का मैकेनिज्म अगर एक्टिवेट हो भी गया है तो भी भ्रामरी जो है वो मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है और इजी है. सबसे इजी प्राणायाम है पूरे प्रेगनेंसी में. ये भ्रामरी सबसे इजी प्राणायाम रहता है. तो इसलिए थोड़ा उज्जाई थोड़ा भ्रामरी ऐसे भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि एक 5 मिनट उज्जाई किया, आगे के 10 मिनट भ्रामरी किया, या कभी 5 मिनट उज्जाई किया, 5 मिनट भ्रामरी कर दिया. ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे तो फेफड़े भी अच्छे खुल जाएंगे एंड उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आसानी से मिल जाएगा. अब कुछ ना सही मैं कहता हूं कि सिंपल स्लोली ब्रीदिंग जो है, यानी प्रेग्नेंट लेडी को शुरुआत में अगर ये सारे मॉडिफिकेशंस डिफिकल्ट लगते तो हम कहते हैं कि पहले 5 मिनट के लिए पहले सांस को सिर्फ गहरा बनाने की कोशिश करो. इनहेल डीपली एंड स्लोली. 2 चीजें हैं, स्लोली एंड डीपली. तो उनको इतना ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि चलो अभी मॉडिफिकेशन बाद में, पहले ऐसा करो कि सांस ऐसी ले लो जहां तक आप ले सकते हो, यानी जहां तक आप फेफड़े एक्सपांड कर सकते हो वहां तक धीरे से एक्सपांड करो. एक वक्त ऐसा आता है कि उस वक्त फेफड़ों की ये छाती की मूवमेंट पूरी बंद हो जाती है, तब तक ले लो. यानी जहां तक हम छाती को एक्सपांड कर सकते हैं वहां तक एक्सपांड कर लो. और इट इज अ लिमिटेशन ऑफ thoracic केज, तो वहां तक एक्सपांड करो और बाद में जितना हम एक्सेल कर सकते हैं उतना एक्सेल करो. सो ट्रेन how to inhale completely, how to exhale completely. जिसको हम कहते हैं कि पूर्ण पूरक पूरक म्हणजे पूरा भर लो फेफड़ों को. हम जैसे किसी बर्तन में पानी भरना है तो पूरे काठों काट हम बोलते हैं ना कि पूरा कुंभ, पूरा बर्तन पानी से भर लो. वैसे है कि पूरा हंडा जो है पानी से भरना है. तो यहाँ भी मतलब क्या है, पूरन. पूरन का मतलब हवा फेफड़ों के अंदर जितनी भर सकते हो उतनी भर लो. इससे क्या होगा
कि जो लाखों छोटे छोटे एल्वियोलाइज है, एल्वियोलाइज एक्टिवेट रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ एल्वियोलाइज या कुछ सेगमेंट जो है वो इनएक्टिव है, उनको काम ही नहीं मिला। अगर उन्होंने जानबूझ के कंप्लीट इनहेलेशन करने का प्रयास किया तो उतनी देर तक फेफड़े पूरे एक्टिवेट हो जाते, एक ना एक एल्वियोला एक्टिवेट रहेगा, ये जरूरी है। तो केवल स्लो डीप ब्रीथिंग भी सही है, कर सकते हैं। हम हमेशा वो ओशो का याहू ब्रीदिंग है उसका भी जिक्र करते हैं। याहू का एक अपनी खासियत होती है कि इट इज अ बेस्ट स्टडी ऑफ एक्सलेशन। वैसे हम जैसे भ्रामरी या ओम चैंटिंग करते हैं, इट बिकम इजी टू एक्सेल लॉन्गर। ऐसे ही अगर सांस लेकर छोड़ेंगे तो वो जल्दी फटक से बाहर जाती है। बट इफ यू फॉलो skillfully through om chanting or through brahmari, then that exhalation become easy to prolong. अब मैं कहता हूँ क्योंकि जितना एक्सलेशन आपने प्रोलॉन्ग किया उतना आगे का जो ब्रीदिंग है वो और सिग्निफिकेंट होने वाला है। तो मैं कहूंगा कि आप ऐसा करो कि पहले सांस अंदर ले लो और छोड़ते वक्त हम जितना लंबा याहू बोल सकते हैं, जैसे मैं भी करके दिखाता हूँ ऐसे, या या मैं तो प्राणायाम के हर बिगिनर को कहता हूँ कि इफ यू वांट टू improve द efficiency ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर फर्दर एडवांस प्राणायाम में आगे जाना है तो लर्न हाउ टू इनहेल डीपली, हाउ टू एक्सेल डीपली। तो उज्जैय में हम हाउ टू इनहेल डीपली सीखते हैं, कैसे सांस अंदर लेनी है सिग्निफिकेंटली, स्किलफुली। और यहाँ ब्राह्मरी में, ओम चैंटिंग में या याहू में हम सांस को कैसे बाहर फेंकते हैं एक लंबे समय तक, ये सीखते हैं। तो एक अच्छे से कॉम्बिनेशन हो जाए कि कुछ लोग थोड़ा कंबाइन करते हैं, इनहेलेशन लाइक उज्जैय एंड एक्सहेलेशन लाइक ब्राह्मरी। तो जब इनहेलेशन करेंगे तब उज्जैय जैसा इनहेलेशन करेंगे और फिर तो ये उज्जैय ब्राह्मरी टाइप ऑफ ब्रीदिंग हो गया। ये अपने प्रैक्टिस की बात है, ऐसे कॉम्बिनेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ताकत देखकर आप कर सकते हो। नहीं तो पहले 5 मिनट उज्जैय का अभ्यास कर लो, आगे के 5 मिनट इस टाइप का कौन सा भी प्राणायाम कर लो, या तो ब्राह्मरी या तो ओम चैंटिंग या तो याहू। याहू में लोग मेंटली ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। मैंने देखा है कि स्ट्रेस्ड व्यक्ति है, डिप्रेस्ड व्यक्ति है, या जिनके इमोशंस थोड़े दबे हुए हैं, हम कहते हैं ना सप्रेस्ड इमोशंस, उन लोगों में ओम चैंटिंग उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसलिए याहू को तांत्रिक ओम बोला है कि तांत्रिक लोगों ने ओम से ज्यादा याहू का उपयोग किया है। तो वो एक वे मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है कि हाउ टू रिलीज योर इमोशंस आउटसाइड इन ए साइलेंट वे। आजकल कैथारसिस बोलते हैं और किसी को कहते हैं तुम रो, रोने के बाद तुम हल्के हो जाओगे। या ओशो भी डायनेमिक मेडिटेशन में वही कहते हैं कि तुम ऐसे कुछ हलचल कर लो जिससे तुम्हारे अंदर का क्रोध, अंदर का जो निराशा, राग है, वो सब बाहर आ जाए। बट इज देयर एनी जेंटल वे to give a way to your suppressed emotions to come out in a gentle way? और वो जो है वो याहू ब्रीथिंग है। ये तरीके होते हैं, कुछ लोग बहुत विगरसली या हु ऐसे करते हैं। दिस इज नॉट द गुड वे। प्रेग्नेंट लेडी के लिए हम कहेंगे कि वो जो लंबा जो सांस चल रहा है, जैसे सांस अंदर लिया और फिर
स्लोली हम या इस प्रकार से अगर हम ब्रीदिंग करेंगे तो वो ज्यादा फायदेकारक रहेगा। अब बात आती है कि शीतली और शीतकारी। शीतली कैसा है? ये माउथ ब्रीदिंग है। तो जब भी कभी प्रेग्नेंट लेडी कुछ वर्क करती है, स्पेशली 7वें 8वें महीने में काम करते करते अचानक थकावट हो जाती है और हाइपर कैप्निया हो जाता है, ऐसे दम लगता है, ब्रीथलेस हो जाती है, उस वक्त एकदम इजी ब्रीदिंग करने के लिए शीतली थोड़ी देर के लिए करने दो, 5 मिनट। जैसे वैसे भी वो माउथ ब्रीदिंग ही करती है, तो वो शीतली के हिसाब से करेंगे तो अच्छे से लंग एक्सपांड हो जाएंगे और ब्रीदिंग थोड़ा डीपर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि शीतली शीतकारी लंबे समय तक कर लो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि माउथ ब्रीदिंग है। तो इसलिए जब कभी आपको थकान महसूस होती हो और उस वक्त अपने आप माउथ ब्रीदिंग की भावना होती है, तब शीतली का अभ्यास करके आप जो थकावट है वो दूर कर सकते हैं। तो उस वक्त हम इस प्रकार का प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये सारे सिंपल टेक्निक्स है जो हम प्रेगनेंसी में वर्कआउट कर सकते हैं। एक प्लान बनाओ, जैसे मैंने कहा कि दूसरे तीसरे चौथे महीने में एक ट्रेनिंग पीरियड होता है कि आगे जाके आपको हाइपर कैप्निया ना हो जाए। इसलिए हम कहेंगे कि पहले दूसरे तीसरे चौथे महीने में हम उसको ये एक 20 मिनट का प्रोग्राम दे सकते हैं। तो जिसमें 5 मिनट उज्जाई किया, 5 मिनट भ्रामरी जैसा प्राणायाम कर लिया और आगे के 10 मिनट अपने तरीके से एक स्लो डीप ब्रीदिंग कर लो। ऐसे एक 20 मिनट का प्रोग्राम करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि दैट 20 मिनट प्राणायाम यू कैन फॉलो 3 टाइम्स अ डे, जब भी कभी पेट खाली हो। तो एक अच्छा पैकेज बन जाएगा कि शुरुआत 5 मिनट उज्जाई से, फिर आगे के 5 मिनट भ्रामरी और फिर आगे के 10 मिनट जो है वो सिंपल स्लो डीप ब्रीथिंग, चाहे वो दोनों नासिका से अंदर सांस ले लो और दोनों नासिका से छोड़ो, या चाहे वो अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जो है, जो आपको इजीली हो, कि जिसमें हम कंप्लीट ब्रीदिंग को महत्व दे देंगे कि ज्यादा से ज्यादा लंग को एक्सपांड कैसे किया जाए। तो ये 20 मिनट का प्राणायाम डिजाइन हो गया और वो दिन में 3 बार हम करते रहे। तो मेरे ख्याल से आज का सब्जेक्ट तो प्राणायाम के ऊपर है और वही मैं कहता हूँ कि बाद में अगर आपको 1 घंटे का जो गर्भ संस्कार करना है तो उसमें ये 20 मिनट का प्राणायाम का प्रयोग पहले करो, बाद में थोड़ा शवासन में जाकर ब्रेथ बॉडी अवेयरनेस कर लो and then further half hour you can follow for that suggestion therapy for a गर्भ संस्कार। तो ऐसा आप 1 घंटे का एक शेड्यूल डिजाइन कर सकते हो और पहले पहले गाइडेड मेडिटेशन होगा, गाइडेड प्रैक्टिस होगी, बाद में इंडिपेंडेंटली वो करते रहेगी, है ना। पहले कुछ सेशन अगर गाइडेड हो जाए तो उनको अंदाज आता है, बाद में वो अपने आप भी करेंगे, जितना करेंगे उतना अच्छा ही है। तो मेरे ख्याल से अभी 50 मिनट हो गए हैं। अब मैं कुछ समय देना चाहता हूँ कि कुछ सवाल हो गए इस टॉपिक के ऊपर या ओवरऑल प्रेगनेंसी और योगा के ऊपर, तो लोग पूछे तो मैं उसके अनुसार उसके आंसर दे दूँ।